Today is Monday, 10th of January, and welcome in online classes for English literature. Today I will teach the Unit 6 chapter My Computer My Friend. इसमें बच्चों ये बताया गया है कि जो माई कंप्यूटर और माई फ्रेंड सच लाइक माई कंप्यूटर मीन्स माई फ्रेंड। कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में हमारे डेली यूजेस में कैसे वो यूजफुल है, वो एक मित्र की तरह है। तो इसमें यही लेकर बताता है कि जो कंप्यूटर है वो हमारे लिए मित्र की तरह कार्य करता है। उसके माउस क्या होते हैं, उसकी कीबोर्ड क्या है, उसके हार्ड ड्राइव्स क्या होते हैं, हार्ड डिस्क क्या है, वो सब हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं और हमारे लाइफ में उस कंप्यूटर का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पूरा बताया गया कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर माई फ्रेंड मीन्स जो कंप्यूटर है वो हमारे मित्र की तरह कार्य करता है। जैसे हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई अपनी चीज़ों को सेव करके रखना हो, कोई फाइल्स बना के रखना हो जिससे हम फ्यूचर में उसको पुनः निकाल सके, उसके बारे में जानकारी ले सके, तो उसमें सेव रहता है। उसी प्रकार जैसे मित्र एक हमारे बुरे समय में, हमारे अच्छे समय में हमारे साथ रहता है, ऐसे कंप्यूटर भी हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो इसीलिए इस नरेटर ने एक टाइटल दिया है माई कंप्यूटर माई फ्रेंड मीन्स जो कंप्यूटर है वो हमारा एक मित्र की तरह होता है। सो लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर माई कंप्यूटर माई फ्रेंड। So let's start this chapter, My Computer, My Friend. It seems that my computer it becoming my best friend. We talk from early morn and through the day. I tell her my ambitions and my many thoughts and dreams. She listens to the things I have to say. It had been to visit once before. She lives at 9 Hard Drive. I knew by memory I could find her house. I came upon her residence and looked in at the windows, and there she sat as quiet as a mouse. We had not much to say that time, for we were very shy. We watched a program sitting on her couch. It was not ergonomic, it was really kind of floppy. I tried to sit up straight and not to slouch the next time that I visited. Now the next stanza, she seems to have a virus, and so I thought I would not stay too long. But then she offered me some port and Lay's potato chips. And then we played a simple game of Pong. The last para. So now we are like lovers and we hate to be apart. My love for her I will never put at risk. She is my inspiration and she gives me all my drive. I will write my hopes and dreams upon her disk. Written by David Ronald Bruce Fackrell. So once I repeat this poem, student, you should repeat with me. It seems that my computer is becoming my best friend. We talk from early morn and through the day. I tell her my ambitions and my many thoughts and dreams. She listens to the things I have to say. I had been to visit once before. She lives at 9 Hard Drive. I knew by memory I could find her house. I came upon her residence and looked in at the windows, and there she sat as quiet as a mouse. We had not much to say that time, for we were very shy. We watched a program sitting on her couch. It was not ergonomic, it was really kind of floppy. I tried to sit up straight and not to slouch. I tried to sit up straight and not to slouch the next time that I visited. She seems to have a virus,
and so I thought I would not stay too long. But then she offered me some food and Lay's potato chips, and then we played a simple game of Pong. So the last para, so now we are like lovers and we hate to be apart. My love for her I will never put at risk. She is my inspiration and she gives me all my drive. I will write my hopes and dreams upon her disk. So the student, the time has come to define this chapter. So listen very carefully. It seems that my computer is becoming my best friend. कहता है इट सीम दैट माई, ऐसा प्रतीत होता कि जो कंप्यूटर है वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होता है या हो रहा है. नाउअडेज कंप्यूटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु इज़ लर्निंग, हु इज़ वर्किंग, हु इज़ लर्निंग समथिंग, स्पेशली इन एजुकेशन, स्पेशली इन वर्किंग एरियाज. तो कहने का मतलब जो कंप्यूटर है वो हमारा एक मित्र की तरह होता है या मित्र की तरह हो रहा है इस समय. वी टॉक फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग एंड थ्रू द डे. हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, यानी हम जो दिन भर काम करते हैं उसे कंप्यूटर की तरह होते हैं. जैसे सुबह से कंप्यूटर हमने ऑन किया और उस पर वन बाय वन सारे वर्क करते गए. आई टेल हर माई एम्बिशंस, और हमने उसको सारी अपनी एम्बिशंस कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो हमको आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है. जैसे हम अपने फ्रेंड को कोई बात शेयर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें सजेस्ट करता है. एंड माई मेनी थाट्स एंड ड्रीम शो लिसन टू द थिंग्स आई हैव टू सी. और जो भी हम कुछ कहते हैं वो कंप्यूटर जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सुनता रहता है. I had been to visit once before. She lived at 9 Hard Drive. I knew my memory. I could find her house. I came upon her residence and looked at in the windows, and there she sat as quiet as a mouse. उसका माउस भी क्वाइट रहता है, शांत रहता है, विंडोज़ भी. यानी हम जो भी कुछ कंप्यूटर में इनपुट की तरह देते हैं, यानी कुछ भी उसको इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट के उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता रहता है. वही कहता है कि जब हम उसके सामने होते हैं, आई न्यू बाई मेमोरी आई कुड फाइंड हर हाउस. यानी हम जो भी कुछ मेमोरी को लेना उसमें से चाहें तो आई कुड फाइंड हर हाउस, मुझे उसके घर से मिल जाता है. मतलब उसके जो स्टोरेज है उसमें वो चीज़ें सेव होती है, वो धीरे धीरे हमें मिलती रहती हैं. वी हैड नॉट मच टू से द टाइम दैट टाइम फॉर वी वेर वेरी शाई. वी हैड नॉट मच टू से द टाइम. हमारे पास बहुत समय नहीं होता उसको सब कुछ बताने के लिए. एंड देयर सी फॉर वी वेर वेरी शाई. जैसे हम बहुत शर्मीले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको नहीं अपने फ्रेंड को बता सकते हैं, फिर भी फ्रेंड हमारी चीज़ों को समझ जाता है. ऐसे कंप्यूटर में जो चीज़ें हम देते हैं सच, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 3×5 इज इक्वल कर दिया, वो समझ गया इसका मतलब हमको क्या करना है, 3×5 इज इक्वल टू 50, तो वो करके हमको दे देता. ऐसे जैसे हमारा मित्र जब हमको इसको कोई सीरियस बात बतानी हो या कुछ भी बताना हो तो समझ जाता है कि इसका मतलब ये है, हमें अपने मित्र को इसके बारे में ये चीज़ें बतानी है. We attached the program sitting on her couch. It was ergonomic. It was really kind of floppy. I tried to sit up straight and not to slouch the next time I visited. और हम कंप्यूटर के सामने एकदम सिट एंड एरेक्ट की तरह बैठकर सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लेते रहते हैं. She seems to have a virus and so I thought I would not sit long. कहता है कभी कभी कंप्यूटर में एक वायरस भी आ जाता है. मीन्स जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो स्लो वर्क करते हैं. स्लो वर्क का मतलब होता है जैसे उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती, तो ऐसे हमारे मित्र के बारे में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, एक दूसरे को बातें शेयर करते हैं. और यदि कोई अफेक्टेड एरिया में पहुंच गया, यानी अफेक्टेड वायरस उसको प्रभावित हो, तो हम उससे दूरी बना लेते. तो वही कहता है एंड सो आई थॉट आई वुड नॉट स्टे टू लॉन्ग. यदि उसमें वायरस है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, जब तक हम उस प्रॉब्लम को, वायरस को दूर नहीं करते, हम उसके सामने ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते. बट देन द ऑफर्ड मी सम पोट एंड लेज
पोटैटो चिप्स एंड देन वी प्लेड ए सिंपल गेम ऑफ पोंग। इसके बाद जब वो कुछ तब तक क्या करते तक वायरस को हटा नहीं देते हम थोड़ी देर बैठ के कुछ ईटिंग करते हैं, जैसे पोटैटो चिप्स खा रहे होते हैं, प्लेड सिंपल गेम ऑफ पोंग, और बैठ के उस पर कोई गेम करते हैं, गेम खेलते हैं। सो नाउ वी आर लाइक लवर्स एंड वी हेट टू बी अपार्ट। हम लोग उस तरह से कैसे उसके साथ हमारा व्यवहार बिहेवियर कैसे होता है, एक लवर्स की तरह होता है, यानी हम दोनों एक दूसरे में कंबाइंड होते हैं। मेरा प्रेम कंप्यूटर के प्रति, कंप्यूटर का प्रेम मेरे प्रति हो जाता है। एंड वी हेट टू बी अपार्ट, और हम लोग एक दूसरे से अलग होने में घृणा महसूस करते हैं। मतलब वी कैन नॉट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। माई लव फॉर हर आई विल नेवर पुट एट रेस्ट, शी इज़ माई इंस्पिरेशन। वो मेरा प्रेरणा स्रोत है, यानी उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो इसलिए हम उनसे अलग नहीं हो सकते। एंड शी गिव्स मी ऑल माई ड्राइव, आई विल राइट माई होप्स एंड ड्रीम्स अपॉन हर डिस्क। उसके डिस्क पर हम उसके अंदर जो भी कुछ लिखते हैं, आई विल राइट माई होप्स, चाहे मेरी होप हो, होपिंग हो या ड्रीम्स हों, वो सब हमको सी गिव्स मी ऑल माई ड्राइव, वो सारी चीज़ें मेरे ड्राइव में रख देता है। आवश्यकता पड़ने पर जब हम उसको चाहते हैं पुनः उस चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल बिकॉज चैप्टर नेम इज़ माई कंप्यूटर माई फ्रेंड। तो जैसे कंप्यूटर एक फ्रेंड की तरह होता है, हम कंप्यूटर पे बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई मेमोरीज को स्टोरेज में रख सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट इस चैप्टर को रीड यू वेरी केयरफुल्ली एंड ट्राई टू राइट सम डिफिकल्ट वर्ड्स। When you write some difficult word, then I will explain about that word then in next video, means tomorrow. When I send to the PDF of this chapter, then I will the answer of that words. So end of this chapter, I will explain about my computer, my friend once again, कि जो माई कंप्यूटर होता है एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होता है। जैसे बेस्ट फ्रेंड हमारे मुसीबत में, हमारे वर्किंग में हमारे साथ होता है, ऐसे कंप्यूटर भी हमारे वर्किंग में हमारे साथ हमेशा होता है। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई से टू से दैट रीड इट वेरी केयरफुल्ली। फर्स्ट यू रीड इट, देन यू ट्राई टू एक्सप्लेन इन योर लैंग्वेज। थैंक यू।